Hey everyone, hi, welcome again to Instagram Live series with Coach Darshan Vyas. We got a special guest today. Let's invite them quickly. We have a special guest who specializes into technology. Hey Virang, how are you? Hi, nice to see Great. you, Darshan. Wonderful. Okay. So, for all our viewers, let me just introduce our guest today. We got a special guest today on the series of Instagram with the ACES. We have somebody who has got 20 years of experience into technology, sales and strategic alliance at the highest level. He has been part of the core team at Fortune 500 companies specializing into technology, namely IBM and Cisco. He has managed revenues in terms of $100 million. So we got somebody who's with 2 decades of experience, specializes into technology. And today we got a great topic. We got AI, we got technology, artificial intelligence, machine learning. And here we go. Please help me welcome Virang Makad. Thank you so much. Hi, everyone. Hi. It's a pleasure to be here. Yes, absolutely, Virang. So, for our audience, I would request that you would introduce yourself formally so that they are aware whom they are listening to. Sure. So I've been into professional world, for almost about 24 years now, and have been part of many large organizations all throughout till 2018. And I left Cisco, where I was leading public sector business, and it was at an epitome of my career, which I decided to move on and try something else in my late 30s. And I joined one of the tech startup in Ahmedabad in the capacity of CXO, and that's where I got to learn a lot of stuff about how machine learning per se, is impacting various industries, and that's where I worked there to scale their business to the next level, including the geographical expansion into international markets. And then I decided to start on my own. So correct. Since last couple of years, I've been working on a couple of ideas. I've failed 2-3 times, building up some of the products, and then I have started again getting back, and now currently I'm augmenting a team of AI researchers and climate scientists, and working on weather and climate as one of the subject, where we are trying to infuse power of AI. So that has been my journey. I think it's a blend of experience from large organizations to the startup, and then getting into my own stuff. I've been also investor into some of the space tech and cyber security startups as well. Well, I've been a mentor to these organizations as well. Wonderful. Interesting story. I can see the 2 things which we picked up from your introduction. As you mentioned about that you moved out from a comfort zone, where you mentioned you were on the peak of your career and you are with one of the Fortune 500 companies, I would say top 10 organizations in the world, Cisco. And second thing you mentioned is the failures of your startups which you experienced the first time. I think that brings in a lot of on the information on the table for the viewers, for the young professionals, for the students per se. So I leave it up to you, Virang. Can you just put some light on your breakthrough, on your journey in terms of your large scale model learnings at the topmost organizations, to your own personal learnings in terms of your failures at the startups, please? So as you rightly said, Darshan, I think people learn from their failures. So unless you have enough number of failures, you are not going to be super successful. So that's the recipe, and we have to develop that resiliency to bounce back and move on. So that has been journey so far, and I'm sure moving forward I'll encounter so many such failures again and will overcome, and hopefully would be able to enjoy my journey all throughout, irrespective of whatever that I do in life. So having worked for MNCs, it's kind of a comfort zone, as you said. And especially I was one of the youngest leader in Cisco, and at the epitome of my performance, and quitting at that time something which many people in the industry were actually laughing on me in terms of why you have to quit at this point in time. You are earning quite well, and you are at a position where nobody can touch you for the next 10 years. But I thought it was becoming more monotonous, and I had that fire to get into next level of value creation. I would say not just wealth creation but value creation. Cisco has been a big name, and it was quite easier for anybody to go position this as an organization and sell technology. But then there is no personal value creation beyond a point that I could have done after having spent so many years with one particular organization. So I thought maybe get into something which actually requires strategic decision making and stuff like that. That's where I plunged into something where I tried my fortune with one of the startups, which is actually rising up. So where I spent 2 years and enabled
build some kind of scaling back, okay? But because of COVID, I think everything was stalled, and then I thought maybe this is a good opportunity to again experiment something rather than working for a startup as an employee. Okay, it makes sense to start on my own. Why not to put all my efforts to build something on my own? And that's where I started building up one of the cloud product. I put in some money, I put in some efforts, whatever that I earned. I mean, I started diverting that into those efforts, and unfortunately, this could not take off because of so many reasons. I mean, one of the major reasons was because of the COVID lockdown. There was a massive demand of tech professionals. Okay? Absolutely. Because everybody was building up SaaS companies. Okay. And it was not possible for me to continue affording this team to retain at their expectations, and eventually we had to give up. However, we reached at some stage and we could develop a product at a certain level. Similarly, I again augmented a team, started working on private cloud, and then again, there were multiple reasons we could not take it off. Okay. And then I tried my hands on mentoring a couple of startups, earned some money more, and then again started putting this money into building up my own team. So since last 1 year, I think we are a team of 10 people. We've been working consistently, on weather and climate, where we are trying to infuse a lot of artificial intelligence based learnings to make sure we are able to address some of the very, very vital and critical problems, like how do we predict floods, how do we predict landslides, and various other stuffs, quite proactively, so that we are prepared and loss of damages and lives can be minimized. So that has been my journey, and I think we will continue with this. We will encounter more failures, we will overcome more failures, and as long as I enjoy this journey, it doesn't matter. Absolutely. Well said. In fact, for our larger audience, हम थोड़ा हिंदी में switch करेंगे, और जैसे आपने एकदम सही बताया कि fail fast is what you mentioned, because जो failure से आपको ज्यादा सिखाती है और वहीं से आपकी जो larger level की success है वो आती है. I think there are a couple of things which I have questions for you, but Virang, again you mentioned something really beautiful. आपने कहा कि मैं personal value बहुत generate कर सकता था, पर आपको long term wealth creation के साथ साथ long term larger level पे value create करने में ज्यादा interest था. तो उस पर कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, सो आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी हमारे हर एस्पेक्ट्स को आज लाइफ में टच कर रही है. ओके, इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, ऑल वॉक्स ऑफ आवर लाइफ, राइट? तो कैसे हम लोग कुछ ऐसा क्रिएट करें जो लोगों को एक मास स्केल पे उसका इम्पैक्ट नजर आए. ओके, इसीलिए हमने एक चूज भी किया है एरिया, वो भी वैसा एरिया चूज किया है कि जहां पे बहुत ही शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड वेरी वेरी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगी. सस्टेनेबिलिटी एंड environment is something which is actually very very important aspect. Sorry to cut you there. आप हमारे व्यूअर्स के लिए ये बता सकते हैं कि आप इन सिंपल टर्म के, एक लेमन की टर्म में, कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का उसमें यूज कर रहे हैं? आज आपके पास जो भी फोरकास्ट आता है, वेदर फोरकास्ट, ओके, वो आपके पास आता है सिटी लेवल पे. आपको ये नहीं पता है कि अगले 1 घंटे में आप जो एरिया में रह रहे हो, ये आप प्रहलाद नगर में रह रहे हो, तो वो प्रहलाद नगर एरिया में अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है. ओके, रेनफॉल होने वाला है, क्या मैं छाता लेके बाहर जाऊं, क्या मैं मेरे कुत्ते को सुबह 6 से 7 में घुमाने ले जाता हूं, तो इज इट द राइट टाइम? वुड आई बी एबल टू गेट दैट अलर्ट की नहीं, अभी नहीं जाना है, अभी ये प्रहलाद नगर एरिया में. सो हाइपर लोकल लेवल वेदर फोरकास्ट एंड इनसाइट ऑफ द इम्पैक्ट विच इट इज गोइंग टू हैव, ओके, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ चैलेंजेस. ओके, तो वो काफी सारे संस्थान जो देते हैं, गवर्नमेंट संस्थान जो फोरकास्ट, ठीक है, वो भी हाइपर लोकल लेवल पे स्केल डाउन नहीं होते हैं. ओके, तो उस पे यू मीन टू से ये प्रोडक्ट और ये इनोवेशन आज की तारीख में इंडिया में अवेलेबल है? इंडिया में जो रिजोल्यूशन पे, जिसको एक स्केल पे बोलते हैं, जैसे लेस देन 1 किलोमीटर स्केल में 15 मिनट में या 1 घंटे में क्या इंपैक्ट होने वाला है, वो स्केल पे अवेलेबल नहीं है. हमें एक मैक्रो स्केल पे वो मिल रहा है, बट ग्लोबली, नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली वो स्केल पे अवेलेबल नहीं है. उसके लिए काफी सारा कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, तभी इसको एक लेवल पे हम ग्राउंड पे डाउन स्केल करके उसका इंपैक्ट एनालिसिस कर सकते हैं. ग्रेट. नाउ आई थिंक आज बहुत जगह पे एआई का बज़ है, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो एज ए लेमैन वी वुड लव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एक्चुअली द सिचुएशन in the field of artificial intelligence and machine learning. You can break down for a layman in their simple language कि आज की परिस्थिति क्या है? देखो, ये हर कोई अभी बोल रहा है कि एआई आ गया है, अभी ये ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. ओके, एआई कैन ओनली रिप्लेस टास्क डन बाय ह्यूमन, इट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन इटसेल्फ. ओके, सो हमें उसको एक टूल या एक कैटलिस्ट की तरह यूज करना है. ओके, कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी डे टू डे लाइफ में कैसे एनहांस कर सकते हैं. ओके,
ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है कि हर कोई ओके इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फील्ड ओके हर कोई को ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि इससे हमें फायदा होगा, हमारे पास चॉइस ही नहीं रहेगी। अगर आप एआई का यूज करना नहीं सीख रहे हो तो बहुत जल्दी आपको कोई रिप्लेस कर देगा जो एआई का अच्छे से यूज करना जानता हो। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो या बिजनेस कोच हो, आपको ये समझना ही पड़ेगा कि एआई का पावर क्या है और उसको आपके फील्ड में कैसे यूज किया जा सके। परफेक्ट। सो आपकी दृष्टि में कौन सी इंडस्ट्रीज को लार्ज लेवल पे और बहुत जल्दी इफेक्ट होने वाला है? मेरे हिसाब से ऑलरेडी इफेक्ट होना चालू हो गया है। सो आप अगर देखो तो हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड फिनटेक ओके ये 3 इंडस्ट्री है जहां पे बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट एक्सपीरियंस होना चालू हो गया है। वाई हेल्थ केयर? क्योंकि वो हम सबको टच करता है। एजुकेशन क्योंकि एवरीबडी गेट्स अफेक्टेड बाय दैट। क्या हो रहा है? सो हेल्थ केयर में हम कैसे प्रोएक्टिवली डिजीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं विदाउट हैविंग वेरी फॉर्मल एंड एग्जॉस्टिव टेस्ट थ्रू इमेजिंग और लाइक उसके ऊपर काफी सारा मशीन लर्निंग का डेटाबेस होगा, हिस्ट्री होगा, उसको कंबाइन किया जाएगा आपके स्ट्रक्चर से, आपके प्रोफाइल से, और फिर एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस पॉसिबल है। जैसे डायबिटीज का क्या इंटेंसिटी हो सकता है, कैंसर का क्या इंटेंसिटी हो सकता है फ्यूचर में, अल्जाइमर्स विच इज ओल्ड एज के लिए बहुत बहुत जरूरी है, अर्ली डिटेक्शन ओके जिससे हम थोड़ा उसको एक लेवल पे ट्रेनिंग देके उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी पे ज्यादा काम करेगा? प्रिडिक्टिव अप्रोच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले है ना, एक बहुत बड़ा मिथ ये है दर्शन कि हर जगह लोग एआई का वर्ड यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली हर चीज एआई नहीं है। एआई तभी होता है जब आपको एक हाइपर पर्सनलाइजेशन चाहिए, आपको प्रिडिक्टिव लाइक मॉडल्स बनाने हैं, कोई भी एक चीज पे प्रिडिक्शन करना है, या आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, कि ये पैटर्न क्या जनरेट हो रहा है, वो पैटर्न के ऊपर से आगे क्या होने वाला है वो करना है, तभी एआई उसको बोला जा सकता है। वरना वो सिंपल सॉफ्टवेयर हो गया या कोडिंग हो गया या ऑटोमेशन हो गया, उससे भी आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बट जो प्रॉब्लम के लिए प्रिडिक्टिबिलिटी बहुत जरूरी है बेस्ड ऑन द पैटर्न एंड हाइपर पर्सनलाइजेशन, वहां पर ही एआई का एक रोल आता है। सो यहाँ पे आपने कपल ऑफ पॉइंट्स पे फोकस किया कि एक तो जो एआई सीखेगा उसकी जॉब नहीं जा सकती है, रेदर देन पीपल हु आर नॉट स्किल्ड इन टर्म्स ऑफ यूजिंग एआई विल बी रिप्लेस्ड। 2 इज इट इज गोइंग टू बी हाइपर लोकलाइजेशन, एंड 3rd इज पैटर्न रिकॉग्निशन के बाद आप एआई का ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे प्रिडिक्शन के लिए, प्रिडिक्शंस के लिए। ओके, तो इसके अलावा और कौन से मिसकंसेप्शन है जो लोगों को डराते हैं आज की तारीख में? लोगों को काफी सारे, मैं थोड़ा एक उल्टा पर्सपेक्टिव देता हूँ, काफी सारे लोग आज भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कुछ आया है। उनको लगता है ठीक है ये आया है वेव, ओके ठीक है, इट्स जस्ट अ बज़वर्ड, ओके। सो अभी वो एक गलत सोच है, बिकॉज आपको बहुत जल्दी आपको इरेलेवेंट बनाया जाएगा अगर आप ये सोच लेके चल रहे हो, ओके। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एआई इनेबल्ड ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है ना, वो ह्यूमन हिस्ट्री में ओके आज तक इतना फास्ट पेस पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ओके। और वो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमें हिट करेगा, हिट कर ही रहा है, ओके। और हमें उसको एम्ब्रेस करना है, हैप्पीली एम्ब्रेस करना है, रिस्पॉन्सिबली एम्ब्रेस करना है, ठीक है। तो ये अगर कहीं ना कहीं एक मुझे लग रहा है कि एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहा है जो कहीं ना कहीं हम सबको रियलाइज करना पड़ेगा कि गॉन आर द डेज, हमें इसको बहुत ही ग्रेसफुली एम्ब्रेस करना है, सीखना है। हमें बहुत सारी पास्ट चीजें भूलनी पड़ेगी, नई तरीके से चीजों को करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हम अपने बच्चों को एक वैल्यू दिखा पाएंगे। हम अपने पेरेंट्स को हमें सिखाना पड़ेगा, और हम हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी काम करते हैं उसमें भी हमें कैसे उसको सुन लेना है, वो हमें एक सीखना पड़ेगा। करेक्ट। सो व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर कंपनीज टुडे? जहां पे अगर आप देखेंगे स्मॉल स्केल कंपनी से कि लार्ज स्केल कंपनीज जो है, वहां पे सबसे ज्यादा चैलेंजेस उन्हें किस तरह से फेस होने वाले? बिकॉज एआई और मशीन लर्निंग ने आज बहुत ज्यादा फियर क्रिएट किया है, तो चाहे वो डेटा थेफ्ट होने वाला है, या प्रोबेबली इट इज गोइंग टू बी मैन पावर कॉस्टिंग, या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, क्या उनकी चैलेंजेस आने वाली है? सब चैलेंजेस आने वाली है, ओके। बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू गेटिंग हिट बाय दिस इंटेंस वेव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, बीइंग इनेबल्ड बाय दिस, ओके। सो बी इट एंटरप्राइज, गवर्नमेंट या इंडिविजुअल, सबको ये वेव हिट करने वाला है, हिट कर रहा है, ओके। तो हमें ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस को डेटा सैनिटी, ओके, वो एक बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, जहां से वो डेटा लेके, एआई इज ऑल अबाउट डेटा, डेटा को जो प्रोसेस करके हम इनसाइट बिल्ड कर रहे हैं, प्रिडिक्शन बिल्ड कर रहे हैं, वो अगर डेटा गलत है तो वो भी गलत बिल्ड होंगे, ओके। तो वो बायसेस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। या तो मैं जानबूझ के आपके ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को ट्विक करके गलत ट्रेनिंग या बायस्ड ट्रेनिंग में मॉडल्स को देता हूं, तो वो
प्रेडिक्टेबिलिटी भी गलत हो जाएगी. Okay. It can actually harm immensely rather than benefit, right? So data clarity, data availability, data sanity is one of the most important aspects of embracing the AI adoption. Okay. दूसरा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बोला. ऑब्वियसली जैसे जैसे ये AI के यूज केसेस आप इन्वेस्टमेंट करते जाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट विल इन प्रोपोर्शन राइज होगा. और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है अनफॉर्चुनेटली. आज भी जीपीयू बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही हम AI के यूज केसेस बना सकते हैं. ओके, सो हमारे पास चॉइस नहीं है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द स्केलेबिलिटी ऑफ एंड थर्ड, रिस्पॉन्सिबली उसको यूज करना ये बहुत जरूरी हो गया है. सो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबल AI. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पे कोई डीप फेक ना हो जाए या कोई गलत बायस क्रिएट ना हो जाए. लाइक ये बहुत जरूरी होगा. ओके, तो जिस तरह से AI बढ़ेगा और उनकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी, AI एनिमल स्किल प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ेगी, तो ऐसा हो सकता है कि मैन पावर कॉस्ट नीचे जाएगी. मैन पावर कॉस्ट नीचे नहीं जाएगी. इसमें L1 लेवल जो स्किल लेवल 1 है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट काफी नीचे चली जाएगी. ओके, बिकॉज आज मैं कॉल सेंटर में 500 एजेंट करके मैं यूएस के 25 क्लाइंट को सपोर्ट कर रहा हूँ. मुझे उसके बाद 5 ही चाहिए. ओके, और बाकी सारा एजेंटिक AI थ्रू रिप्लेस हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत जरूरी है समझना कि हमें हमारी स्किल लेवल को बहुत ही जल्दी एनहांस करने की जरूरत है, वरना हमारा रिवॉर्ड, मॉनिटरी रिवॉर्ड है ना, वो एक्सपोनेंशियली ड्रॉप हो जाएगा. करेक्ट. सो आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो रिपीटेटिव जॉब्स है, लो स्किल जॉब्स है या एंट्री लेवल जॉब्स है, वो जल्दी रिप्लेस हो जाएगी. एब्सोल्युटली, वो होना चालू हो गया है ऑलरेडी. ओके, तो इन दिस सिचुएशन यंग प्रोफेशनल्स, यंग ग्रेजुएट्स या जो सेमी स्किल्ड है, उन्हें क्या करना चाहिए? व्हाट इज द बेस्ट वे अप्रोच? सीखना पड़ेगा वेरियस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज विच आर देयर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सी अभी दर्शन, अभी ये टेक्नोलॉजी है ना, वो एक सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए नहीं रही है. ओके. अभी हर एक को इसका यूज करना आना पड़ेगा. और उसके जो भी काम है, वो अकाउंटिंग का काम है या वो क्लीनिंग का काम है, वो कुकिंग का काम है, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं मेरे जो भी काम है, डेली काम जिससे मुझे पैसे मिलते हैं, उसमें मैं बेटर कैसे हो सकता हूँ, कैसे मैं मेरी प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सकता हूँ. उसके लिए आप टेक्नोलॉजी, जैसे आप व्हाट्सएप का यूज करते हो, वो एक डॉक्टर भी यूज करता है और आपका प्लम्बर भी यूज करता है. वो भी आपका बाथरूम के पाइपिंग का फोटो खींच के आपको भेज देता है कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है. ठीक है, तो व्हाट्सएप का यूज जैसे सबने चालू कर दिया, जैसे AI का यूज अपने डे टू डे लाइफ में आपको चालू करना पड़ेगा. ओके, फाइन. So how do you define as an organization or as a business owner कि मुझे यहाँ पे AI का यूज करना चाहिए, और अगर करना है तो what is the best way to approach it? तो वो प्रॉब्लम कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ मुझे AI का यूज करना पड़ेगा? पहले तो आपको क्लैरिटी ऑफ प्रॉब्लम चाहिए. ओके, सो प्रॉब्लम की क्लैरिटी आपके पास है तो आप दूसरा सवाल ये पूछो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या मेरे पास इनफ डेटा अवेलेबल है, जो क्लीन डेटा है. अगर क्लीन डेटा अवेलेबल है तो क्या मुझे वो डेटा को प्रोसेस करके प्रिडिक्टेबल कुछ चीजें बनानी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? तो अगर वो बनानी है तभी आप AI का यूज करो, वरना आप मतलब नॉर्मल सॉफ्टवेयर या नॉर्मल ऑटोमेशन से आप अपना काम चला सकते हो. ओके, फाइन. सो हियर दिस फॉलो अप क्वेश्चन इज कि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो सोच रहे कि मैं AI के 2 कोर्स कर लूंगा और मैं AI स्टार्टअप में ज्वाइन कर लूंगा और मेरी निकल पड़ी, मेरा काम हो गया. तो क्या ये थिंकिंग सही है? नहीं. तो ये एक मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एक शेयर करता हूं पंचलाइन. ओके, कि all young professionals, okay, have to learn AI not for seeking job, but for solving problems. Okay. तो अगर आपका माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्व करने से है और आप टेक्नोलॉजी सीखते हो तो दैट विल वर्क. बट अगर आप ये सोचते हो कि मैं AI सीख के सर्टिफिकेशन कोर्स करके जॉब ले लूंगा, तो कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे. शायद आपको एक ब्रेक मिल सकता है, बट देन कहीं ना कहीं अटक जाओगे, बिकॉज फाइनली इट हैज टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम एंड क्रिएट वैल्यू. करेक्ट. सिंस आप बहुत ज्यादा मेंबर ऑफ अ थिंक टैंक विद अ कपल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, आपके खुद स्टार्टअप में इन्वेस्टेड है, तो ये जो आपके एक्सपीरियंस है उससे ये बताइए कि गवर्नमेंट लेवल पे इसका इंप्लीमेंटेशन क्या होने वाला है? देखो, गवर्नमेंट लेवल पे ये इंप्लीमेंटेशन बहुत ही जल्दी एक्सेलरेट होने वाला है. ओके, गवर्नमेंट में फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स टेकन बाय द रिसेंट गवर्नमेंट ओवर द लास्ट 11-12 ईयर्स. ओके, आई थिंक बहुत सारा डेटा ऑलरेडी जनरेट हो रहा है, बहुत ऑटोमेशन हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है, अगर आपके पास डेटा है तो आप उसको उसके ऊपर एक इंटेलिजेंस लेयर बिठा सकते हो. ठीक है, तो आज मैंने इतने सारे CCTVs डिप्लॉय किए हैं, इतने सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं, एग्रीकल्चर में मैंने काफी सारा ऑटोमेशन कर लिया है. ये सारा डेटा आ रहा है हमारे पास. ठीक है, तो ये डेटा के ऊपर हम
इंटेलिजेंस लेयर बिठा के हम नेक्स्ट लेवल का सिटीजन सर्विसेज या सिटीजन एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वो एक बहुत बड़ा एक ये वेव आने वाला है। और दूसरा, वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम गेटिंग इंटेलिजेंस टू गेटिंग इनटू एक्शन। ओके, so agentic AI is something which is not only generating intelligence but also getting your work done. Okay. So as a citizen, how do I use various agentic AI frameworks? Okay, to avail various citizen services. Okay, much effectively. मुझे वो मैन्युअली फॉर्म भरना, धक्के खाना जाके गवर्नमेंट ऑफिस में, ये सब 2-3 साल में कम हो जाएगा काफी। ओके, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया एजेंटिक AI, तो हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि ये क्या है। सो एजेंटिक AI कुछ नहीं, आप चैट जीपीटी यूज करते हो, उसमें आप जो भी सवाल पूछते हो उसका एक अच्छा इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग कैसे आंसर देता है वो आंसर आता है। ठीक है, आपने ये पूछा कि मेरे को घूमने जाना है दिवाली में, तो कहाँ मैं जा सकता हूँ, तो उसका आंसर आएगा कि आप इंडिया से हो तो आप पहाड़ों में जा सकते हो, आप बीच साइड जा सकते हो, बट देन दैट इज इंटेलिजेंस विच इज जनरेटेड। नाउ आई एम टेलिंग ऑल्सो कि आप 4 दिन के लिए मेरे को बेस्ट आइटनरी बुक करके दे दो। तो वो ऑटोमेटिकली आएगा मेक माई ट्रिप में या booking.com में, और आपका पूरा आइटनरी ब्लॉक करेगा आपके फ्लाइट के प्रेफरेंसेस के हिसाब से, आपके सीट्स ब्लॉक करेगा, आपका चेक इन करेगा, आपका बोर्डिंग पास जनरेट करेगा और आपको वो व्हाट्सएप पे भेज देगा। ओके, सो सारा प्रोसेस राइट फ्रॉम इंटेलिजेंस टू एक्शन इज बीइंग ऑटोमेटेड बाय एजेंटिक AI। तो आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले ओपन AI ने कोडर्स कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें एक नया नया फीचर लॉन्च किए काफी सारे, इसमें दे हैव इंक्लूडेड एजेंटिक AI एज अ, ऑलरेडी इट वाज इंक्लूडेड, बट अभी नेक्स्ट लेवल का उन्होंने वहां पे इंक्लूड कर लिया है, जिसको एजेंट किट बोलते हैं। आप एजेंट किट से चैट जीपीटी से ही आप अपने स्पॉटिफाई के प्लेलिस्ट आइडेंटिफाई करके प्ले कर सकते हो, आप वहीं से आप अपने बुकिंग्स कर सकते हो सारे, आप वहीं से कैनवा में आप डिजाइनिंग बना सकते हो, आपको कोई मल्टीपल एप्लीकेशंस में जाके एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक एजेंट किट जो है ना, वो एक क्लासिक डिसरप्शन है। आप मानोगे नहीं दर्शन, ये एजेंट किट जो लॉन्च किया चैट जीपीटी 5 ने, उससे करीब 5 से 7 बिलियन डॉलर प्लस स्टार्टअप्स ऑलमोस्ट जीरो हो गए। बिकॉज ये लोग, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, LangChain हो गया, N8N हो गया, ठीक है, ये सारे वर्कफ्लो ऑटोमेशन पे काम कर रहे थे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वैल्यूएशन दे हैड क्रिएटेड। ये लोगों ने इंक्लूड कर लिया अपने 2000 रुपए सब्सक्रिप्शन में। सो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी डिसरप्शन दैट इट कैन हैव, ओके, इन दिस स्पेस। या करेक्ट। सो आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टैंड हियर इज कि जो आप AI में बताया आपने, एजेंटिक AI बताया आपने, और मैं ये समझ सकता हूं, और आई रेड समवेयर कि यू कैन क्रिएट एन एजेंट हु विल कंप्लीटली ऑटोमेट योर टास्क। तो ये लेमन के लिए बताइए कि ये व्हाट इज दिस एजेंट क्रिएशन एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन। Okay, so suppose Darshan as an individual you are into some business, okay? अब आपके बिजनेस में एक प्रोसेस है कि वीरा, मैंने कहीं पे देखा था और पढ़ा भी था कि यूएस में 15 दिन पहले एक होटल में एक चैटबॉट ने राइट फ्रॉम दे स्टार्टेड वर्किंग लाइक अ रिसेप्शन, तो आपका बुकिंग भी ऑनलाइन हो गया, उन्होंने आपको रिसीव भी कर लिया, आपका रूम सर्विस भी हो गया, आपका बिलिंग भी हो गया और आपकी एग्जिट भी हो गई। वो 3-4 दिन में आपने किसी का मुंह नहीं देखा और आपको एक वर्चुअल चैटबॉट ने सारी चीजें सर्विसेज दे दी। तो ऐसा ही कुछ होता है क्या? ये एजेंटिक AI है, आप जो बोल रहे हो वो एजेंटिक AI है, जहां हम इंटेलिजेंस से एक्शन पे जाते हैं। ओके, सो कोई भी प्रोसेस आप पकड़ लो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे प्रोसेस हो या इंडिविजुअल लेवल पे प्रोसेस हो, एवरीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड, ओके, थ्रू एजेंटिक AI। उसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड वर्कफ्लो ऑटोमेशन का एक इंटरफेस रहता है, वहां पे आप लेमन लैंग्वेज में डिफाइन करते जाओ। अभी तो वाइट कोडिंग का भी जमाना आ गया है, सो आप नेचुरल लैंग्वेज में बात करते जाओ और आपका वर्कफ्लो ऑटोमेशन तैयार होता जाएगा। करेक्ट। तो ये सब पॉसिबिलिटी ऑलरेडी हो गई है। सो एजेंटिक AI इज समथिंग विच इज वेरी करंटली very happening thing in this world. It is not only happening but it is scary also, क्योंकि बहुत जो repetitive jobs है या front end jobs है, जैसे मान लीजिए टेलीकॉलिंग है, या अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर देख ले, बैंकिंग देख ले, हेल्प डेस्क ऑफ ऑल द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। जी, ये सब सारा आप स्विगी में भी आप देखो एजेंटिक AI पूरा है। 80% ऑफ द कॉल्स इंक्लूडिंग कंफर्मिंग द कैंसलेशन, ओके, ऑफ योर ऑर्डर्स कैन बी अप्रूव्ड थ्रू एजेंटिक AI। वो लोग अपने ह्यूमन एजेंट्स तो एक ऐसे एस्केलेशन पे अंदर आते हैं जहां पे पॉसिबल ही नहीं है इनके लिए कुछ डिसीजन लेना, और काफी कॉम्प्लेक्स है, तभी ह्यूमन इंटरवेंशन आता है। बाकी 80% जॉब्स आर डन थ्रू एजेंटिक AI सिस्टम इन द बैक एंड। ओके, सो हियर इज द रेड अलर्ट, हियर इज द थिंग व्हिच पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 70-80% लेवल की जो एंट्री लेवल जॉब्स है, दे आर गेटिंग रिप्लेस्ड थ्रू दिस AI। That is precisely happening. Correct.
So in this case, as a young graduate, what are 2-3 skills which they should pick up and learn to make sure they're employable? पहले तो इसमें है ना adaptation. Okay, so Okay. there are a lot of, so I would focus on human skills. I will not focus on technology skills because you may be a commerce graduate, you may be an engineering graduate, but eventually आपको ये 3-4 चीजें बहुत जरूरी है. Okay, एक तो adaptation, how fast Okay. you are able to keep pace with the change which is happening, which is technology enabled. Okay, that is first. Second, communication. अब हर aspect में एक कैसे articulate किया जाए, कैसे communicate किया जाए. Okay, Okay. ना, ये बहुत जरूरी हो जाएगा आगे जाके. Okay, और वो आपको exceptional skills आपको adopt करनी पड़ेगी. ठीक है, आप कोई भी फील्ड में हो. ओके, और थर्ड स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज बेसिकली कोलैबोरेशन. ओके, सो कोलैबोरेशन इज गॉन आर द डेज वेयर स्पेशलाइज्ड स्किल का जमाना नहीं रहा. अभी टी शेप स्किल्स का जमाना है. टी शेप मतलब यू कैन लर्न एवरीथिंग. ओके, हॉरिजॉन्टली. ओके, एंड वेन एवर रिक्वायर्ड यू कैन गेट डीप इनटू द वर्टिकल लाइक लाइन. ओके, लाइक अ टी शेप. Interesting. सो कोई भी ग्रेजुएट है ना, उनको टी शेप स्किल मॉडल में जाना पड़ेगा. ओके, जहां पे आप बहुत ही जल्दी लर्न कर पाते हो और कोई भी एक चीज में घुसना पड़ा ना तो आप घुस जाते हो अंदर और बहुत अच्छी Correct. तरीके से घुस जाते हो. मे बी यूजिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, बट एटलीस्ट आप में वो एक डेवलप हो गई है एक एबिलिटी. सो एडेप्टेशन, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन आर द 3 skills beyond your whatever domain that you picked up in your graduation. That's a wonderful takeaway for a young grad. And you also mentioned something called T-shaped learning. So how would you specify that? Can you just again cover up in 30 seconds? T-shaped learning is one is horizontal line and one is vertical line. Okay, so horizontal is wherever you are required. तो एक तो आपका हो गया डोमेन जहां पे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो. दूसरा हो गया बहुत सारी अलग अलग चीजें कि कैसे आप मल्टीपल लोगों से, मल्टीपल स्किल वाले लोगों से कोलैबोरेट करके कुछ कुछ नई नई चीजें आप कर सकते हो. ठीक है, Okay. जब जहां जरूरत पड़ी, सपोज मुझे जरूरत पड़ी कि आज मुझे फार्मा डोमेन में थोड़ा डीप में जाके समझना पड़ेगा. मे बी आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट. ओके, बट देन मुझे एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट करना पड़ रहा है जहां मुझे फार्मा डोमेन समझना पड़ेगा. तो मैं वो समझने के लिए केपेबल होना चाहिए. मैं अंदर जाके सीखना पड़ेगा मुझे, तो मैं फिर अंदर घुस जाऊंगा. तो वो हो गया आपका एक वर्टिकल स्किल स्ट्रक्चर. Okay. तो यू हैव टू हैव मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. ओके, एंड देन वन स्पेसिफिक थिंग यू शुड बी एबल टू गेट इनटू व्हेनेवर रिक्वायर्ड इन डिटेल. Perfect. Perfect. So what I understand is if I was a 20-year-old kid और अगर मैं किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएट हूँ, not only science or commerce or engineering, so should I deep dive into one specific area, let's say artificial intelligence, machine learning, cyber security, data analytics, या मुझे generalist रहना चाहिए? ये आपके चॉइस के ऊपर है. ओके, कि आपको कैसे जाना है, बट इवेंचुअली आपको डेवलप तो टी शेप मॉडल ही करना पड़ेगा. ओके, आपको कौन से जगह पे डीप जाना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. यू मे पिक अप साइबर सिक्योरिटी एज अ डोमेन and go very deep, but then that does not mean it eliminates the need of understanding healthcare domain or understanding pharma domain or understanding financial domain, because cyber security का सबसे बड़ा implication financial domain में है. Okay. जब तक मैं डोमेन पर्सपेक्टिव से समझूंगा नहीं कि ट्रांजेक्शंस कैसे होते हैं और कहां पे लोग कैसे उसका फ्रॉड कर सकते हैं, तब तक मैं मेरे साइबर सिक्योरिटी स्किल कितना भी डीप हो, मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा. ओके, Okay. so I'll have to then also learn a domain. I'll have to learn my core competence which I have, and whatever interest that I have, I can probably go very deep into that. So that's how it works. हाँ, बिकॉज ये सवाल हमारे पास एक व्यूअर से आया था कि आजकल ये डिजिटल अरेस्ट बहुत चल रहा है और वहीं से ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में लोगों की जानकारी या लोगों का जो अप्रोच है वो चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे आप कुछ कहना चाहेंगे? सो ये देखो, डिजिटल अरेस्ट और ये सब चीजें बहुत बेसिक है. ओके, उसमें तो सिर्फ अवेयरनेस हमें चाहिए. हमें इतनी अवेयरनेस चाहिए कि भाई कोई आपका अरेस्ट ऐसे कर नहीं सकता है. आपको थोड़ा बेसिक जानकारी लॉ की या कैसे पुलिस काम करती है, कैसे कोर्ट काम करती है, उसकी अगर है तो आप समझ जाओगे कि ये मेरे को कोई वीडियो पे ऐसे थ्रेटन नहीं कर सकता. ओके, और मुझे इसका कहीं राइट जगह पे एस्केलेशन करके क्लैरिटी लेना चाहिए. तो ये एक अवेयरनेस रिलेटेड इशू है, नथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी. Great. And if you look it in the favor of our young professionals, young graduates, हमेशा लोगों को ये होता है कि मैं abroad जाके पढ़ाई करूंगा. तो recently we have read that US there are a lot of restrictions which is happening. So what do you see? What is the best approach to deal with this? There is nothing to worry about. I think continue focusing on what you intend to do. Okay, world has become global. Boundaries have diminished. Okay, you can collaborate with anybody from anywhere. No need to go and take exposure by physically going into a particular country. Why don't you work with people who are in US or UK and collaborate with them on some research proposals, on some projects and stuff like that, unless you have some aspiration of living into that country. Okay, there is no need to worry about anything. Okay, so
you would say you can collab, you can travel for work, you can come back, but then migrating there is not a necessity. Unless you want to leave out of that place. Okay, so वो lifestyle choice हो जाती है, नहीं कि It's आपकी वो a different ball game altogether. Okay, उसमें मतलब then there are a lot of like visa related restrictions and stuff like that, immigration policy and all. बाकी आप अगर learning is your only hunger, then you can collaborate with anyone globally. हम लोग भी collaborate कर रहे हैं virtually. Okay, and we are also learning from each other. So that is a possibility you can actually explore anywhere. Given a choice, you would prefer New York or Bangalore? I would prefer Ahmedabad rather. Okay, good one, good one. And would be happy collaborating in Bangalore and New York. Correct. And if you were to turn 22 today, what are the top 3 things you would avoid? I would avoid distraction first of all, okay, because that is actually killing a lot of my creativity, okay. And second, I would avoid getting into comfort zone, okay. And third, focusing on my mental well-being, because that is something which is utmost important. These 3 things in my 20s, I am able to manage. I'll be able to carve out my own journey. Great. And that 20-year-old kid would have any regrets? I would not have any regrets. Rather, I am quite curious and excited about the world that I'm actually seeing around me. Okay. आपकी कुछ सजेशंस हमारे व्यूअर्स के लिए जो यंग ग्रेजुएट्स है, यंग प्रोफेशनल्स है, उनके लिए एनी 2-3 पॉइंटर्स जिस पे उन्हें काम करना चाहिए? Be curious, stay curious, okay? Keep learning and have a growth mindset. Focus on what you intend to do, okay? And keep evolving. That's the only way you can actually exploit the opportunity around you. I think it's a once in a lifetime opportunity that you are going to embrace. So embrace it well and make use of it. Wonderful. I think Virang, we had a wonderful session. Once again, thank you so much for your time and inputs. And I think this conversation, this live, will help a lot of young professionals, young graduates to go to the next level. So once again, thank you so much and catch you soon. I hope so. And thank you, Darshan, for having me here, and all the best to your viewers. Thank you so much. Thank you. We'll catch up soon. Thank you. Thank you.